Hey kiddos, I'm Ashwita and I hope you guys are doing fine. So here I am with the second poetry which I have to teach you right now for the class 12th board examinations, right? I told you that I'll be uploading videos very in day or two, but I'm sorry I got late. I got busy with the work, but fine. I will I'll teach you the second poetry, Keeping Quiet by Pablo Neruda, and it is the easiest poetry of all, because in this poem you basically have themes that is peace, unity and all of it, so you don't have to think much. It's just a very simple poetry in a very simple language. I will not put a lot of effort to it because it's very easy, and what you have to do is just think a bit deeply about that, like some titles, like if it's peace and how peace and the world around you is how the world around you is disturbing the peace and all. So I will go through this poem very quickly. I'll just read it paragraph, and by paragraph I'll read it and I'll explain you simultaneously, and then we'll discuss the themes and if literary devices, if any. That's it. Will not extend this video very long, and look, the themes are too much. Like if we'll count in it, like it's 10, 12, 14 themes, so I'll not tell you all. I'll just explain the four very important themes, and uske baad se at the end of the video I will mention all other themes. I'll write it down and give it to you, okay? So you can just go through it. You just don't have to read according about the themes. आप बस एक एक लाइन पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा that what you have to write. ठीक है? So starting with the explanations, first let's have a very quick intro of the poet. And as I said in my previous video कि आपको पोएट के बारे में बहुत कुछ जानना जरूरी नहीं होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि ये पोएम जो है वो इस पोएट ने लिखी है, एंड दैट इज इट. उसके अलावा डोंट डाइव डीप इनटू द इंफॉर्मेशन अबाउट पोएट एंड उसके like in what century it is written and blah blah blah. Not important at all. Also one more thing, if you want to study literature apart from this like academic thing, then only you can go you can read the poet background and all, but only when you are interested in literature. उसके अलावा अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? So the video will start from here, the explanation, and just you can watch the video on 1.5x also. I speak slow basically. So yeah, and it's easy one, very 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 easy actually. So yeah, let's start with the about the poet. Pablo Neruda, 1904 to 1973, is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral and Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the prize of literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspections and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Well, these are the things which are not very important, I guess. You just have to go through it. इसको skip कर देना, ठीक है? I should have said that earlier, right? Fine. We'll start the poem from here. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of earth, let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Okay, sorry. So in the very first paragraph, it's the 2 line and then 4 lines, so it's like basically 2 paragraphs. I'll explain it once. So in this the poet is saying now we will count to 12. okay, 12. So हम अभी से 12 seconds के लिए like we will count till 12 and उसके बाद we will keep still, ठीक है? So what he wants to say that like this world is
full of rush and voices, not voices, noises basically. So this world is very relentless, very restless. Everyone is just moving here and there, doing their works and all. No one is quiet and no one is still. कोई भी ऐसे स्थिर नहीं है, ठीक है. तो what he wants to say कि हम 12 seconds will count till 12, एटलीस्ट सिर्फ 12 सेकेंड्स के लिए, फॉर 12 सेकेंड्स. ओके, क्वेश्चन में ये एक चीज पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ 12. ठीक है, आई नो ये बहुत सारी जगहों पे नहीं दिया हुआ है अबाउट द 12, कोई इतना ध्यान से नहीं देखा, बट व्हाट्स द रेलेवेंस ऑफ दिस 12 सेकेंड्स. सो बेसिकली 12 कैन बी, देखो पोएम्स में कभी कोई राइटर ये नहीं बताता कि क्या क्या सोच के उन्होंने ये लिखा है. ठीक है, तो इट्स ऑल प्रेडिक्शंस. तो बेसिकली इट्स प्रेडिक्टेड बाय अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स कि 12 जो वर्ड उन्होंने यूज किया है फॉर 12 सेकेंड्स, 12 द काउंटिंग, उसका ये रीजन हो सकता है दैट ही सॉ द क्लॉक, और उसमें आप देखते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. सो ही सॉ द 12 नंबर्स ऑन द क्लॉक एंड उसके वजह से. ओके, एंड देन एक और उसका सिग्निफिकेंस हो सकता है दैट जोडिएक साइंस, द जोडिएक साइंस आर 12. ओके, 12 जोडिएक साइंस होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट मे बी वो उस जोडिएक साइन को ले सकते हैं. सो एनी नंबर इन द यूनिवर्स विच इज 12 का ग्रुप ऑफ 12 एंड उसको रेलेवेंट बना सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट कन्फर्म. तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा होगा कि नहीं 12 का सिग्निफिकेंस लाइक 12 मंथ्स एंड ऑल, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है, तो यू आर नॉट बाउंडेड विथ एनी रूल्स एंड रेगुलेशन इन लिटरेचर. ठीक है, फाइन. सो ही सेड कि लेट्स काउंट फॉर 12 सेकेंड, और फिर हम स्थिर होते हैं उस 12 सेकेंड्स के लिए. ठीक है, for once a face of the earth, let's not speak any languages, let's stop for 1 second and not move our arms so much. Okay, he wants to say कि like देखो, let's not speak any languages. इसका significance ये है कि he wants to say कि language जो है ना वो इंसान में एक बैरियर है. मतलब व्हाट इफ मैं मराठी बोल रही हूँ और आप राजस्थानी हो, आपको नहीं समझ आ रहा है. ठीक है, आप क्या बोलते हैं, आप तेलुगु बोल रहे हो, मैं कोई और लैंग्वेज बोल रही हूँ, हमारे में वो बैरियर है एंड उसके वजह से केओस क्रिएट होगा. आप समझ रहे हो, बिकॉज वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर. ठीक है, एंड लैंग्वेज इज बेसिकली द थिंग दैट माइट डिवाइड पीपल. हमारे इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पे ही द स्टेट्स आर डिवाइडेड, राइट. आपको पता होगा कि लैंग्वेज के आप हिस्ट्री पढ़ोगे अगर इंडिया की, तो इट्स बेसिकली कि लैंग्वेज जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी जो लैंग्वेज बोल रही थी, उसके बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो बेसिकली लैंग्वेज जो है दैट इज वन ऑफ द differences it creates. It might create a difference between two human beings. So the poet wants to say कि let's not speak any language, let's not do anything, let's stop for 1 second and not move our arms. कुछ नहीं करना है, let's stop. ठीक है, थम जाते हैं बेसिकली, एक बार के लिए एक ठहराव लाते हैं अपने अंदर. ठीक है, एक स्टिलनेस, एक कामनेस. तो एक बार के लिए वो जो भी ठहराव है वो हमारे अंदर लाते हैं और वो बोलते हैं कि हम काउंट करना शुरू करते हैं. लेट्स काउंट 12 सेकेंड्स. 12 सेकेंड्स के लिए लेट्स काउंट एंड उसके बाद हम ये ठहराव, मतलब उस 12 सेकेंड्स में हम ठहराव लाएंगे. ठीक है, सॉरी. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in sudden strangeness. Now he wants to say कि देखो, imagine of the moments when there will be nothing chaotic around us. सब कुछ एकदम शांत होगा, स्थिर होगा. तो इमेजिन करो कि कोई रश नहीं, कोई विदाउट इंजन्स मीन्स कि कोई गाड़ियां नहीं चल रही है, कोई फैक्ट्रीज नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं. एंड वी विल बी टुगेदर. ही वॉन्ट्स टू से बेसिकली कि जितना भी जितने भी इन्वेंशंस है, कार, फैक्ट्रीज, वर्क, फिर जितने भी प्रेशर है लोगों पे, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑल, ये हमारे अंदर कितना डिफरेंसेस क्रिएट कर चुके हैं दैट
वी आर नॉट टुगेदर, वी आर लाइक कोई कंपनी किसी कंपनी के लिए लड़ रही है, मतलब लाइक दे वांट टू डिग्रेड दैट, कॉलेजेस में देयर इज कंपटीशन, स्टूडेंट में देयर इज कंपटीशन, ह्यूमंस में देयर इज कंपटीशन, एवरीवेयर देयर इज कंपटीशन, राइट? तो कितना सारा वो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है बेसिकली. सो व्हाट्स द पॉइंट ही वांट्स टू से इन दिस पैराग्राफ कि मतलब कितना सडन, लाइक एक सडन स्ट्रेंजनेस आ जाएगी अगर हम सब एक साथ हो जाएंगे. एक यू विल फील अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग जो हमने कभी नहीं किया है. देखो ये पोएम जब आई डोंट नो द ईयर इन विच इट इज रिटन, बट जब भी ये पोएम लिखी गई होगी ऑब्वियसली 19th सेंचुरी में लिखी गई होगी. हाँ, तो वहां पे जब बहुत सारी वर्ल्ड में केओस था सारी चीजों को लेके, क्योंकि डेवलपमेंट के फेजेस पे थे हम. सो द पोएट वांट्स कि सब कुछ एक बार थम जाए. दिस इज अ यूनिवर्सल, दिस इज फॉर द होल यूनिवर्स, नॉट जस्ट फॉर हिज कंट्री, नॉट जस्ट फॉर द प्लेस वेयर ही लिव्ड. इट इज फॉर द होल यूनिवर्स कि एक बार तो पूरा जो यूनिवर्स है ना वो एक बार एक ठहराव में आ जाए. ठीक है, तो पोएट का इंटेंशन क्या होगा? ठीक है, आप एक बार के लिए लेट्स इट्स अ वेरी हमारे लाइक इफ यू आर रीडिंग दिस नाउ तो आपको इस पोएम का रेलेवेंस समझ में आएगा. याद है जब हम कोविड वाले टाइम में सब एक जगह बंद थे और लाइफ में कोई रश नहीं था कि यहाँ जाना है वहां जाना है. ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन्स थे, हम पढ़ाइयाँ तभी भी कर रहे थे, अपना काम तभी भी कर रहे थे, एनी हाउ. बट कोई एक स्टिलनेस थी, बहुत केओस था बाहर, बीमारी का केओस था, लोगों की डेथ हो रही थी, एंड इट वाज वेरी वन ऑफ द वर्स्ट फेज फॉर आवर कंट्री या फिर फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली. इतना बड़ा पैंडेमिक था. बट आप जिन्होंने मतलब जिनके लिए लाइफ थोड़ी यू नो थैंक गॉड, अगर जिसके लिए यू नो जिनकी फैमिलीज में किसी को कुछ नहीं हुआ, द वन हु आर सेफ राइट नाउ, और सब कुछ सब घर में आगे ठहराव था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितना वो फेस कितना पीसफुल रहा होगा. आपने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आप साल 2 साल के लिए सब घर के अंदर रहेंगे बिना किसी भाग दौड़ के. वो एक बहुत अलग सा फेज था. पेब्लो नरूडा ने वो फेज नहीं देखा था बिकॉज ही वॉज नॉट देयर. तो वो सारी चीजें, बट आई वुड से कि वो उस समय ना फिर भी इतनी ठहराव नहीं थी, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा हम प्रे करते थे भगवान ये चीज से खत्म हो जाए, किसी का कुछ बुरा ना हो, कोई सब ठीक हो जाए एंड ऑल. कितना क्योटिक एनवायरमेंट था, आई नो. पर सब उस समय में एक दूसरे सब एक दूसरे से दूर भाग रहे थे. टुगेदरनेस थी पर ऐसी थी कि मतलब सब बच जाए पर हम एक दूसरे के लिए हार्मफुल भी थे, है था कि नहीं. तो वो तो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो है, बट एट सम पॉइंट वो है कि एक ठहराव आया था. याद है पोल्यूशन कम हो गया था एंड बहुत सारी चीजें उस समय कम हुई थी, सब कुछ बैलेंस हुआ था. तो इट वॉज ऑल दैट, एक ठहराव आया था हमारी लाइफ में. ठीक है, उसके बाद अभी आप देखो तो एवरीथिंग इज इन रश, सब कुछ इतना रश में है कि किसी के पास 5 मिनट नहीं है अपने पेरेंट्स के पास बैठ के बात करने के लिए. एंड दैट इज वेरी दैट्स नॉट गुड एक्चुअली. वी शुड टेक आउट टाइम. हम कितने भी बिजी हों हमें आना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाट पोएट वांट्स टू से कि हम कहीं भी रहें, एक हमारे अंदर जो सेंस ऑफ टुगेदरनेस है वो चली गई है. हमारे अंदर एक जो सेंस ऑफ स्टिलनेस है वो चली गई है. हम बहुत रश में हैं. ठीक है, एंड अभी के लिए तो इट्स सो रेलेवेंट. आप देखो कितना ज्यादा रश है लाइफ में. ठीक है, तो दिस इज एंड देन द नेक्स्ट पैराग्राफ इज fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब देखो, he wants to say कि देखो जो फिशरमैन है, how they are harming the fishes and all, कैसे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब करते हैं, वो बता रहे कि हंटिंग एंड ऑल वाली. इट इज जस्ट उन्होंने फिशरमैन और वेल्स का मेंशन किया है, बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू से कि कितना सारा कितनी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, कितना सब कुछ डिस्टर्ब्ड है बेसिकली एनवायरनमेंट में. एंड ही सेज दैट men gathering salt, जो इंसान द वन हु आर वर्किंग इन गैदरिंग सॉल्ट्स, जो नमक वगैरह
बनाने में जो काम कर रहे हैं, they will look at their hurting hands. Means this line is very important, you know. आप कभी किसी, आपने देखा होगा आपके अराउंड में, सराउंडिंग में लेबर्स वगैरह काम करते हैं एंड ऑल, बहुत रश में एंड ऑल, आपने कभी उनको बैठ के ये सोचते हुए देखा है कि वो किधर हैंड्स आर रफ एंड ड्राई, दे शुड टेक केयर ऑफ इट, दे शुड मॉइस्चराइज इट एंड ऑल? नहीं ना. ही वॉन्ट्स टू से कि इतना रश है सबके लाइफ में, इतना रश है, दे आर अर्निंग money for their livelihood and all, so like they do not realize the pain, their hurting hands, उनको अपने हाथ का पेन नहीं रियलाइज हो रहा है, राइट? दैट्स व्हाट ही वांट्स टू से. सो जब लाइफ में स्टिलनेस आएगी तो वेल्स वगैरह, मतलब फिशर्स को फिशरमैन मारना बंद कर देंगे, थोड़ी लाइक एनिमल्स भी थोड़ा फ्री रहेंगे, दे विल एंजॉय, दे विल हैव देयर टाइम, वो अपनी जगह पे लाइक फॉरेस्ट, सी, वट एवर, दे विल हैव देयर स्टिलनेस एज वेल. उनको भी अपने आप को बचाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा. दे विल ऑल्सो फील द स्टिलनेस. And the people who have been, you know, grinding them in their work will sit and look at their hands and look at them. It's not hands, it's everything. Like they will look at them कि उन्होंने कितना हर्ट किया है खुद को इन सारी चीज़ों में, इन सारे दुनिया के कॉम्पिटिशन्स में, अपने लाइवलीहुड अर्न करने में. दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. सो all of this, each and every line holds a meaning, okay? And now the other paragraph: those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk with their brothers in the shade, doing nothing. And this paragraph is basically for the soldiers, that those who prepare green wars, the people who are preparing wars, basically जो लड़ाइयाँ चल रही हैं यहाँ पे वहाँ पे, जिधर भी, कहीं भी, नॉट जस्ट सोल्जर्स, एनीवेयर, कहीं भी रिलीजियस, अपने रिलीजन को लेके जो भी ये राइट्स होते हैं, रिलीजियस राइट्स एंड ऑल, धरना या फिर दंगे एंड ऑल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी एक बार के लिए कम हो जाएंगी. लाइक अगर स्टिलनेस आएगा तो दे विल ऑल्सो काम डाउन, दे विल वेयर क्लीन क्लोथ्स. क्लीन क्लोथ्स मीन्स द पीपल हु गो टू वॉर, they do not take care of their clothes. They have very dirty clothes because they have to crawl on the ground to fight and what not, right? कितना कुछ होता है. तो because of that वो बोल, मतलब the poet want to say कि जो soldiers हैं, जो the people who are fighting wars, वो भी एक बार के लिए you know, they'll wear clean clothes, साफ कपड़े पहनेंगे, and they will walk with their brothers. That he said brothers, but he meant that friends, brothers, family, and will have, you know, quietness. क्यों किसी को इतना you know, life में इतना कुछ face करना है? If ask a soldier that whether he wants to go for a war, he will never, you know, because he's leaving his whole family behind and going to fight for a war which might not be a relevant one, right? For no reason. It's just maybe the egoistic you know, agenda of two countries or anything. But उन सारी चीजों के लिए a lot of people are sacrificing their life. तो क्या ये जरूरी है? So the poet wants to say कि अगर वो स्टिलनेस आएगी तो ये लोग भी कितना आराम से अपने भाई बहनों के साथ they will walk, wear clean clothes and all, ठीक है? Then the other paragraph: what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and then of threatening ourselves with death. Okay, the poet wants to say in this paragraph, I'll just summarize it because obviously you need to write that. He wants to say कि जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको आप
कंप्लीट इनएक्टिविटी से कंफ्यूज मत करना। कंप्लीट इनएक्टिविटी मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप हमेशा के लिए सब कुछ शट डाउन कर दो, नहीं। ऐसे कि मैं सब कुछ ऐसा नहीं चाहता कि सब कुछ बंद कर दो, मैं सिर्फ एक स्टिलनेस की बात कर रहा हूँ, एक पॉज की बात कर रहा हूँ। पॉज लाइक फॉर इफ देयर इज अ वेरी लॉन्ग मूवी यू आर वॉचिंग, अगर आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हो एंड यू गेट टायर्ड 1.5 घंटे देखने के बाद, तो आपकी आईज को थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए, राइट? तो वहां पे यू पॉज द मूवी, यू फ्रेशन अप एंड देन यू कंटिन्यू, राइट? तो पोएट wants to say the same thing. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ बंद कर दो, he's not saying that don't watch that movie, ठीक है? he's saying कि आप एक stillness लाओ, एक inactivity for a certain amount of time, for a period, to freshen up, to let the environment, heal and then everything. So he wants to say that, and he said that I want no truck with death. He wants to say कि मुझे नहीं चाहिए कि in the it is in the respect of the soldiers. आपको याद है जब wars की बात we were doing अभी थोड़ी देर पहले, तो he said that मुझे कोई डेथ के ट्रक्स नहीं, लाइक होती है ना डेड बॉडीज ट्रक्स में भर के आती है, तो आई डोंट वांट एनी डेड बॉडीज, एनी ट्रक्स फिल्ड विद डेड बॉडीज एंड ऑल, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a use silence. Well, from here it only means that everything is so chaotic. How can we be so single-minded? How can you just be single-minded as in the sense कि हम एक ही तरफ इतना ज्यादा खुद को हमारा वर्क इतना क्योटिक ही शेड्यूल क्यों है? वाई आरंट वी जस्ट कांट थिंक कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, हम इसके सेकेंड साइड को क्यों नहीं देख रहे, राइट? तो सिंगल माइंडेड एज इन द सेंस कि हम ऐसे नहीं कर सकते दैट वी विल कीप वर्किंग एंड नथिंग विल हैपन टू अस, ठीक है? ही वॉन्ट्स टू से कि लाइफ तो ऑब्वियसली ऐसे चलती रहेगी, मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ रोक दो, बट एक बार के लिए फॉर वंस अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारे अंदर की बहुत सारे जो दुख है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी. ओके, सो जब लॉकडाउन हुआ था एंड वी ऑल केम टू नो कि पोल्यूशन कम हो रहा है क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थी एंड ऑल, तो याद है बहुत सारे जगहों पे हमने सुना था कि महीने में या फिर साल 2 साल में 2-3 दिन लॉकडाउन लगना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि नेचर को भी हील करने का टाइम चाहिए. द पोएट वॉन्ट्स टू से एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है? आप इसको बहुत आराम से लिख सकते हो बिकॉज यू हैव ऑल्सो सीन इट, लाइक इन फ्रंट ऑफ योर आईज यू हैव एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दोज थिंग्स की एक स्टिलनेस आई जब पूरे यूनिवर्स में, तो क्या हुआ, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले, ठीक है? तो कितना different animals, they were coming out of the forest and they were a lot of things were going good. Obviously the other things were going bad as well, but aren't we responsible for all of that? हम ही तो responsible है because we are harming our nature very badly कि हमें सफर करना पड़ेगा एक दिन. This is what Pablo Neruda said in 19th century when he was not aware of COVID at all. So he said कि एक बार के लिए एक ये stillness भी जरूरी है. We should be still, we should be quiet. वो बोल रहे हैं कि अगर आप बैठ के एक बार शांति से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे, अपनी सैडनेस के बारे में सोचोगे, he mentioned might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with them. अगर हम बैठ के अपनी सैडनेस, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो वी माइट गेट अ सोल्यूशन. मे बी क्या पता हमें वो एक ठहराव की ही जरूरत हो, वो सारी सैडनेस और वो सारे बुरे ख्याल दैट इज थ्रेटनिंग अस टू डेथ, उसे सॉल्व करने के लिए. व्हाट इफ ओनली दैट ठहराव इज नीडेड? Okay, I'll tell you one of the personal experience of mine. So basically it's like I was in Delhi a few days back and I was doing my college and all, and I was in so much rush, ठीक है? And when I came back home I got the stillness, ठीक है? मेरे को एक ठहराव मिला. I got to
मैंने खुद को आई कलेक्टेड माई सेल्फ, आई कंपोज्ड माई सेल्फ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा यही रह के रह जाऊंगी, फिर मेरी लाइफ का कोई पॉइंट नहीं है। आई विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स, मैं वापस आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू, आई गो टू कॉलेज एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो लाइफ में ना एक पोएट का सिर्फ यही कहना है कि एक ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ठहराव ना होने की वजह से हमारा नेचर खत्म हो रहा है, ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है, ह्यूमंस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, बहुत सारे, मतलब all of the bad happenings that is going around us is because of that only. He wants to say this, okay? Last 5 lines of the poem. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So this means that poet wants to say that when everything around us is, we know we are seeing it alive, but it might be dead. Okay, हमें लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, but everything, don't you think the people in this generation are more depressed? Don't you think the people have very chaotic energy? Don't you think all of those crimes and everything is happening in this generation is too much, right? So he wants to say that it might look that everything is alive, but it's dead. Actually it's dead, and just to make it alive we need to take a pause. ठीक है? And he at the end he says, now I'll count up to 12, you keep quiet and I'll go. Said कि ठीक है, अब तुम 12 सेकेंड गिनो, मैं जाता हूं और तुम चुप रहो। मतलब ही सेड कि when he started कि मैं 12 सेकेंड का काउंट करता हूं, तुम यू गो इन अ साइलेंस। अब इन द एंड ही सेज कि मैं जा रहा हूं शांति में, अब तुम काउंटिंग करो। ठीक है? सो बेसिकली देखो, इस पोएम में ना सिर्फ एक चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टिलनेस। लाइफ में स्टिल होना कितना जरूरी है, लाइफ में एक ठहराव कितना जरूरी है। किसी भी चीज को आप अपने आप को अगर यू वर्क टू मच, यू स्टडी टू मच, अगर आप एग्जॉस्ट कर दोगे खुद को तो इट्स हार्मफुल फॉर यू। सो ही वांट्स टू सी कि यूनिवर्स जो है ना बेसिकली वो एग्जॉस्ट हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हो चुका है, बट ही सेइंग कि हो रहा है, लाइक इन द सेंस कि wars, conflicts and all and all and all, and that's true because pollution and every global warming, pollution, population, everything is just rising और कोई solution नहीं आ पा रहा है इसका। एंड उसकी वजह से यू कैन सी लॉट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैपनिंग, बहुत सारी चीजें हैं। सो इट इज ऑल द consequences, हाँ, इट्स ऑल द consequences फॉर इट। तो आपको एज आई सेड इस पोएम में कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो नाउ द थीम्स ऑफ द पोएम, आई गिव यू 4 वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, पीस, यूनिटी एंड एनवायरमेंट। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। उसके अलावा आई हैव 10 मोर थीम्स। ठीक है? 10 और थीम्स मैंने फाइंड आउट किए। आई थिंक वो हो सकता है रेलिवेंट आपके आंसर राइटिंग के लिए, तो मैं उसको एंड ऑफ द वीडियो में लिख के दे दूंगी। पर अभी आपको ये 4 बहुत जरूरी है। आप अगर ये 4 समझ सकते हो तो आप बाकी आंसर कर लोगे, कोई भी आंसर आप आराम से लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपने आप को एग्जामिनिंग योर सेल्फ वेरी डीपली, अपने आप को एग्जामिन करना, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपके जितने भी क्या बोल सकते हो उसको, एक्सपीरियंसेस, या फिर अपने जितने भी मेमोरीज, जितने भी आपके आइडियाज हैं, वो सारी चीजों को एग्जामिन करना। ठीक है? कि क्या सही होता है, क्या गलत होगा ये करना, like is things right, what are the problems I'm facing, what makes me happy, what are the reasons of my reasons of my sadness right now and all of it. ठीक है? तो पहला इंट्रोस्पेक्शन, एनालिसिस, एग्जामिनिंग योरसेल्फ डीपली। ठीक है? पहला पोएम में ये थीम है। ऑब्वियसली पोएट ये कह रहे हैं कि आप स्टिल होके आप खुद को एग्जामिन करो, आपकी आधी जो सैडनेस है वो ऐसे ही दूर हो जाएगी।
ठीक है। सेकेंड इज पीस। ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि वॉर्स नहीं हो, लड़ाइयाँ नहीं हो। इवन ह्यूमन और एनिमल, द फिशरमैन एंड व्हेल, वो सारी चीजें, द वे ह्यूमन्स आर हार्मिंग एनिमल एंड एनिमल्स आर हार्मिंग ह्यूमन, वो भी बंद हो जाए। नो वायलेंस, नथिंग, just peace. Everyone should be still together and should have a peace for a few seconds so that they can feel the can do the introspections of themselves, right? And then the unity, and obviously the unity that the poet says that everyone will have togetherness. अगर हम कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं लगाते हैं, सब स्टिल हो जाएंगे, सब में एक ठहराव आ जाएगा, सब सिर्फ बैठ के शांति से खुद को एनालाइज करेंगे, तो एक ठहराव जो उनके अंदर रहेगा वो सबको एक साथ लेके आएगा, ठीक है। तो थर्ड इज यूनिटी एंड लास्ट इज एनवायरमेंट। ऑब्वियसली दैट हाउ एनवायरमेंट इज गेटिंग हार्म्ड हमारे कंटिन्यूअसली, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे शेड्यूल्स हैं, दैट एवरीवन इज सो बिजी कि किसी को किसी की नहीं पड़ी है। हम हर तरीके से लाइक एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, इंजन, कार्स, वॉर्स में जो भी वेपन्स यूज हो रहे हैं, एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स। और एनवायरमेंट को आप सबसे बेटर पता है कोविड वाले टाइम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां से जाके, रिलेट टू द पोएम, मेंशन द पोएम बट विद द कोविड थिंग, विद योर एक्सपीरियंसेस, एंड दैट विल गेट यू मोर मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज इट। एंड लिटरेरी डिवाइसेस, आई डोंट थिंक देयर इज मच इन दिस। बहुत कम, जैसे एलिट्रेशन होगा जिसमें बार बार रिपीट होता है। एलिट्रेशन इज बेसिकली दैट रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स, वी विल, जैसे दो वर्ड्स हैं, अगर दो कॉन्सोनेंट्स हैं तो अगर वो बैक टू बैक, वी विल, दोनों में डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है, दो अगर वर्ड्स कंटिन्यूअसली वैसे यूज हो रहा है तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए तो आई थिंक आप कर लोगे, इट्स नॉट दैट टफ। एंड रेपिटेशन है, वर्ड्स का बहुत बार यूज किया गया है, वॉर वॉर वॉर, यही है। लिटरेरी डिवाइस कुछ नहीं है इसमें। पोएम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, थीम्स मैंने बता दिया, बाकी थीम्स मैं दे दूंगी। पोएम में कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड देयर इज दिस वन क्वेश्चन, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन विच इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। राइट द रेलेवेंस ऑफ द पोएम विथ दिस generation, like, or with this 20th century, or you can with the 20th century, or write the relevance of the poem in the recent time, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत कुछ आंसर करके दे देगा। एंड एज आई सेड, आई हैव बीन मेकिंग अ नोट, ठीक है। एक पीडीएफ में बना रही हूँ जिसमें मैं एक ऐसा आंसर बना रही हूँ जो आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देगा सिर्फ एक पेज में, ठीक है। तो आप उस आंसर को कहीं भी लिख सकते हो एंड दैट विल बी रेलेवेंट, ठीक है। आई विल मेक इट लाइक दैट। मैं उसको इतना क्रिएटिवली बना रही हूँ कि एक क्वेश्चन का मतलब आई विल मेक एन आंसर जो हर क्वेश्चन में रेलेवेंट होगा, या फिर आप उसमें से पॉइंटर्स लेके वो कर सकते हो। मैं उसके लिए एक पीडीएफ बना रही हूँ एंड थीम्स वगैरह के लिए एक शॉर्ट नोट, जो आप एग्जाम, ये वीडियो आप अगर आज देख रहे हो तो आप एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वो शॉर्ट नोट लेके एक बार यू हैव टू गो थ्रू एंड अ वेरी शॉर्ट नोट, लाइक 1 पेजर नोट, सिर्फ एक पेज में बनेगा, ठीक है। 1 page for 1 poem, 1 page for 1 short story. I will make it like that. I told you in the previous video. मैं अपनी like the Insta I mentioned in the last video is not working right now, so I will mention the other one. You can follow me on my Instagram. You can text me there. मैं आपको PDF वहाँ भेज दूंगी और I will send you और email you, ठीक है। मैं आपको personally वो भेज दूंगी। और तो ऐसा कुछ है नहीं, आई थिंक आई हैव टू टेल यू। सो प्लीज स्टडी वेल। आई विल बी कमिंग विद अदर वीडियोज वेरी सून एंड विल कवर इट वेरी इजीली। लिटरेचर में इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज एंड इफ यू आर फॉलोइंग दैट 1 page नोट, तो आपको बहुत कुछ क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई एम डूइंग द वर्क। वॉच दिस वीडियो while you are having fun, while you are
यू नो हैविंग फूड एंड ऑल, तो मजे से देखो, कोई प्रेशर मत लो. आई विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क. इट्स वेरी इजी. एंड yes, follow me on Instagram. I'll send you my one pager note there. Text me, you know, DM me there. मैं वहाँ भेज दूंगी. And that is it. Like, share and subscribe for more literary you know, works you want to listen and all. If you want any other like academic से हटके, if you want anything else, if you want me to teach any novel or something, I'll do that. But let's cover this first, okay? So yep guys, take care, have fun and all the best. कुछ समझ में नहीं आया तो just comment it down, मैं उसको explain कर दूंगी. ठीक है, bye.